Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, hope you all are doing well and taking your video lessons regularly. This is your English text class. Student, Alhamdulillah, as you know that we have finished 2 lessons of our English book, My English Book 8. First lesson it was Friendship and Cooperation, and the second it was Natural Beauty of Pakistan. Now today we are starting our new lesson. The name of this lesson is Traffic Education. So as you know that कि जब भी हम टेक्स्ट पढ़ते हैं तो द डिक्शनरी इज़ द मैंडेटरी पार्ट ऑफ दिस. आपके पास डिक्शनरी होना चाहिए ताकि आप जो है वो यू कैन लुक अप द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स इन द डिक्शनरी. सो बिफोर स्टार्टिंग द टेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू कि हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ व्हेन वी रीड द टेक्स्ट, व्हेन वी रीड द कॉम्प्रिहेंशन. सो लेट्स कम टू द बोर्ड. We have unit number 3 traffic education and I have written the code here. मैंने एक कोड लिखा है कि ट्रैफिक एजुकेशन के लिए आप एक कोड, बहुत सिंपल सा कोड है. स्टार्ट अर्ली, ड्राइव स्लोली, रीच सेफली. यानी जो है अगर आप जो है वो स्टार्ट अपना जल्दी उठते हैं, सही तरीके से कामली जो है वो ड्राइव करते हैं और तो आप जो है वो रीच कर जाएंगे जहाँ भी आपका डेस्टिनेशन है वहाँ तक सेफ एंड साउंड यानी सेफ. सो ये तो हम डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू द ऑब्जेक्टिव्स. व्हाई वी लर्न टेक्स्ट. हम टेक्स्ट क्यों पढ़ते हैं? हम टेक्स्ट इसलिए पढ़ते हैं एट द एंड ऑफ द लेसन वी विल बी at the end of the lesson the student will be able to read the text with correct pronunciation. Okay, आपको read करना आना चाहिए correct pronunciations के साथ, and you will be able to give the English and Urdu meanings of new words. After reading the text you can able to tell the synonyms and antonyms of new words. And आप जब text पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ आप और क्या चीज़ सीखते हैं? You are able to skim the text. What is the meaning of skimming text? It means that readily go through the text. यानी जल्दी जल्दी पढ़ लेना ताकि जो है you can get the idea what the text is about. कि जो है वो टेक्स्ट जो है वो किसके मुतालिक है, आप उसको जल्दी से पढ़ लें. आप पूरा डिटेल में ना पढ़ें, बस उसको to get for only getting the idea. And then you will be able at the end of the lesson you will be able to summarize and translate the text, translate it into Urdu. Simple words में कह सकते हैं आप. And you will be able to make the sentences and solve the book exercises that are given after the comprehension. So these are some objectives that I have told you. मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी बताए थे आपको और सेकंड लेसन में भी. नाउ आई हैव रिवाइज्ड, वी हैव रिवाइज्ड अगेन. नाउ लेट्स बिगिन विद द चैप्टर. Open page number 37. We have unit number 3 traffic education. The name of this chapter is traffic education, and now we have there you can see on the next page you can see the picture. And what is, look at the picture, it shows a busy road. Actually the picture is showing a busy road, an overloaded bus here, a child riding a bicycle, the man are hanging on the footboard of a bus. ठीक है, वो बिल्कुल जो है वो बस के किनारे पे खड़ा हुआ है. देयर इज़ अ मोटरसाइकिल. सो देयर इज़ दिस इज़ अ सीन ऑफ अ क्राउडेड रोड. सो आप जब स्ट्रीट पे जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, जिनमें से एक जो है वो क्या होता है कि आपके पास जो है वो ट्रैफिक का बहुत रश होता है. एंड एट दैट टाइम हाउ शुड यू बिहेव, आपको कैसे बिहेव करना चाहिए. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू मस्ट बी एजुकेटेड अबाउट द ट्रैफिक रूल्स. आपको ट्रैफिक रूल्स पता होने चाहिए. ट्रैफिक जो है वो रेगुलेशंस पता होने चाहिए कि आप जब भी ट्रैफिक वो रोड पे आएँ तो आपको एक अच्छे जो है वो सिटीज़न की तरह, एक वेल बिहेव सिटीज़न की तरह जो है वो बिहेव करना चाहिए. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न दिस. सो लेट्स बिगिन द रीडिंग फर्स्ट एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू इन उर्दू. सो व्हाट इज़ द टेक्स्ट heading? Better be safe than sorry. So do you know anyone who died, was seriously injured in a road accident? Most of us know of someone who has been involved in a road accident in one way or the other. Why do you think accidents happen? It is mainly because most people do not follow the road safety rules. Roads are built to make travel easy for us, and we must therefore use them carefully so that they become safe for us to travel on. Citizens must understand that undisciplined users cause traffic accidents, and accidents sometimes result in people losing some part of their body or even their lives.
According to the information available, all types of road users, including truck and bus drivers and even pedestrians, are responsible for accidents. Many accidents happen because of careless pedestrians who cross roads without checking for safety. They also walk on the road instead of using the footpaths. Another major reason why accidents occur is because many cyclists ride too fast and do not use helmets to protect their heads. Worst of all, they perform dangerous stunts. Some other causes of accidents are children playing in the streets, beggar dodging traffic, and people selling flowers and other things on the road. Okay, I'm reading till here. Okay. I'm going to start the text. Do you know anyone who died or was seriously injured in a road accident? आपको कभी मालूम है कि कोई जो है वो किसी का जो है who passed away, who died or seriously injured, bruised or road accident में? Most of us know of someone. हम में से हर कोई जानता है ऐसे लोगों को who has been involved in a road accident in one way or other. यानी वो किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व रह चुका होगा, यानी उसके साथ जो है ही मैट और शी मैट और दे मैट विद अ रोड एक्सीडेंट इन वन और अदर वे, किसी भी तरीके से. व्हाई डू यू थिंक एक्सीडेंट्स हैपन? क्या ख्याल है आपका कि ये एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं? व्हाई, व्हाट इज़ द रीज़न? आपको क्या लगता है कि ये एक्सीडेंट क्यों होते हैं? ये खुद ब खुद हो जाते हैं, दे ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, या देयर आर सम रीज़न बिहाइंड दिस? इसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं. येस, देयर आर ऑलवेज रीजंस. इट इज़ मेनली बिकॉज मोस्ट पीपल डू नॉट फॉलो द रोड सेफ्टी रूल. अब आपको पता है कि जो है हमारे जो राइडर्स हैं, चाहे वो बस राइडर्स हो, ट्रक ड्राइवर्स हों, ये जो मोटर बाइक्स वाले हों, तो ये लोग जो है दे डू नॉट एक्चुअली फॉलो द सेफ्टी रूल. जो सेफ्टी रूल्स होते हैं उनको फॉलो नहीं करते. एंड यू नो दैट रोड्स आर बिल्ट टू मेक ट्रैवल ईजी फॉर अस. रोड्स क्यों बनाए जाते हैं? दिस इज़ नॉट फॉर, इट इज़ नॉट लाइक अ स्टेज. हमारा स्टेज नहीं होता जिसमें हम वी कैन शो द प्ले और वी कैन शो द ट्रिक्स. तो हमें यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से, बहुत वेल सिविलाइज सिटीजन की तरह ट्रैवल करना चाहिए. सो दे आर बिल्ट टू मेक ट्रैवल ईजी. हमारे लिए ही बना जाते हैं ताकि हम सही तरीके से आसानी के साथ ट्रैवल कर सकें. वी मस्ट यूज़ दैम केयरफुली सो दैट दे बिकम सेफ फॉर अस टू ट्रैवल ऑन. तो हमें क्या करना चाहिए? व्हाट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग अ सिविलाइज सिटीजन? हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको अच्छी सही तरीके से इस्तेमाल करें, बिकॉज दे बिकम सेफ फॉर अस टू ट्रैवल ऑन, ताकि हम जो है ये हमें आसानी के साथ ट्रैवल करना हमारे लिए आसान बनाते हैं. सिटीजन्स मस्ट अंडरस्टैंड दैट अनडिसिप्लिन यूज़र कॉज ट्रैफिक एक्सीडेंट. सिटीजन्स को, जो शहरी हैं, जो ड्वेलर्स हैं, जो इनहेबिटेंट्स हैं उस जगह के, उस सिटी के, उस रीजन के, उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो अनडिसिप्लिन यूज़र हैं, अनडिसिप्लिन यूज़र्स का मतलब दोज हु आर यूजिंग द रोड बट दे आर नॉट फॉलोइंग द रूल. जो ऐसे लोग जो रोड तो यूज़ कर रहे हैं बट दे आर डू नॉट नो व्हाट आर द रूल्स, तो वो क्या होते हैं? वो सबब बनते हैं, कॉज होते हैं, उनका रीज़न होते हैं ट्रैफिक एक्सीडेंट्स का. और एक्सीडेंट सम टाइम रिजल्ट इन पीपल लूजिंग सम पार्ट ऑफ देयर बॉडी और इवन देयर लाइफ. और एक्सीडेंट की वजह से क्या होता है उसके नतीजे में कि लोग जो है जो बॉडी का कोई पार्ट है वो लूज़ कर जाते हैं, या सम टाइम ऐसा भी होता है, इतने सीवियर एक्सीडेंट्स होते हैं कि कभी कभी उनकी जानें भी चली जाती हैं. सो एज यू नो दैट हम एक कोट पढ़ते हैं कि एक्सीडेंट ब्रिंग टीयर्स एंड सेफली ब्रिंग चेयर्स. ओके, सो एक्सीडेंट्स जो है हमारे लिए हमेशा आंसू लेकर आते हैं, और सेफ्टी जो है हमारे लिए हमेशा खुशियाँ लेकर आती हैं. सो दैट्स व्हाई वी शुड फॉलो द स्ट्रीट रूल्स. According to the information available, all types of road user including truck and bus drivers, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके लिहाज से जो हर टाइप के जो रोड यूज़र हैं, जो यूज़ करते हैं रोड को, इंक्लूडिंग उसमें बस ड्राइवर्स भी हैं, ट्रक ड्राइवर्स भी हैं, इवन पेडेस्ट्रियंस भी हैं, एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, दे ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सीडेंट. ये सब जो हैं वो एक्सीडेंट्स की वजह बन जाते हैं. मैनी एक्सीडेंट्स हैपन बिकॉज ऑफ केयरलेस पेडेस्ट्रियंस. इस वजह से भी होते हैं जो केयरलेस पेडेस्ट्रियंस होते हैं, दे क्रॉस द रोड वेरी केयरलेसली. बिल्कुल ऐसे ही क्रॉस करते हैं, केयरलेस होकर क्रॉस करते हैं. हु क्रॉस द रोड विदाउट चेकिंग फॉर सेफ्टी, वो चेक नहीं करते अपनी सेफ्टी और को देखते नहीं हैं, एंड दे जस्ट क्रॉस द रोड बिकॉज दे हरी वांट टू रीच देयर डेस्टिनेशन. दे ऑल्सो वॉक ऑन द रोड इंस्टेड ऑफ यूजिंग फुटपाथ. वो कहाँ चल रहे होते हैं? जो फुटपाथ्स के अलावा चलने के बजाय वो रोड्स पे चलते हैं. अनदर मेजर
रीज़न वाई एक्सीडेंट्स अकर, क्यों है, दूसरा रीज़न उन्होंने ये बताया है कि बिकॉज मैनी मोटरसाइकिलिस्ट जो होते हैं राइड टू फास्ट एंड डू नॉट यूज़ हेलमेट्स टू प्रोटेक्ट देयर हेयर। वो क्या करते हैं, दे रश टू रीच देयर डेस्टिनेशन, अपनी जगह पे पहुंचने की उन्हें बहुत जल्दी होती है, और दे डू नॉट यूज़ हेलमेट्स, जो हेलमेट्स होते हैं जो दैट इज़ यूज फॉर प्रोटेक्टिंग देयर हेड्स, तो उसको जो है वो नहीं पहनते। वर्स्ट ऑफ ऑल, इसके अलावा सबसे बड़ी ख़राबी ये जो है, वर्स्ट ऑफ ऑल इन सब में सबसे बड़ी ख़राबी ये है कि दे परफॉर्म डेंजरस स्टंट्स में क्या आसान वर्ड बताऊँ तो इसके लिए ट्रिक्स होते हैं, जैसे आपने मोटर बाइक्स वालों को देखा होगा, वो अक्सर जो है रोड्स पे जो है दे प्ले सम ट्रिक्स, तो दीज आर कॉल्ड स्टंट्स। एक वन व्हील राइडिंग करते हैं, कभी उस पर लेट जाते हैं, बहुत सारी ट्रिक्स वो परफॉर्म करते हैं, बट दे ऑल आर डेंजरस। सम अदर कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट्स आर चिल्ड्रन प्लेइंग इन द स्ट्रीट, और आपने जो है दूसरे उसमें रीजंस में ये कि चिल्ड्रन को देखा होगा वो स्ट्रीट्स पे खेलते हैं, बैगर डॉजिंग करते हैं ट्रैफिक को, यानी इधर से उधर मांगने के लिए, बैक करने के लिए जाते हैं, सो दैट्स वाई इसी वजह से भी ट्रैफिक जो रोड यूज़र होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं टू सेव दैम, उनको बचाने के चक्कर में। एंड पीपल सेलिंग फ्लावर्स, और जो रोड पे जो फ्लावर्स बेच रहे होते हैं उन वो लोग भी अक्सर वजू बन जाते हैं, एंड अदर थिंग्स ऑन द रोड, इसके अलावा और भी बहुत सारी दूसरी चीज़ें। सो स्टूडेंट, होपफुली यू अंडरस्टूड वट एवर आई एक्सप्लेन यू। आप इस जो टेक्स्ट है जितना भी मैंने बहुत शॉर्ट ट्रीट किया है, आप इसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा, एंड देयर आर सम न्यू वर्ड्स फॉर यू, एंड इट इज़ कंपल्सरी टू लुक अप द मीनिंग्स ऑफ दीज न्यू वर्ड्स। What is the homework